So dear students, today we are here on exercise 4.4, which is related to triangle and basic geometrical ideas chapter we have completed till exercise 4.3, which were related to a polygon, and also one of the exercise which was related to the line and the line segment, rays, points, and these things. And the second exercise which we have done, it was about how to write down the name of an angle and how to identify which angles are these. Okay, so now exercise 4.4, which we are going to do right now, will be based on the topic triangle. And remember, triangle is a polygon. First of all, keep in your mind, triangle is a polygon. Remember, triangle is a polygon in such a way that it has the least number of side. Remember, ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है बेटा जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं. ठीक है, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं. तो रिमेंबर, 3 ट्राइंगल से छोटा कोई भी पॉलीगन नहीं होता है. रिमेंबर, इससे कम साइड्स वाला कोई भी पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल. रिमेंबर, ट्राइंगल इज अ पॉलीगन which has the least number of sides. And remember, this is the extremely important question which generally comes in exam, that which polygon has the least number of sides. So remember, triangle is the answer. Now understand what is triangle. Now remember, triangle बेटा अपने नाम से ही सारा का सारा मीनिंग बता देता है. कैसे? Triangle. Tri means 3 or angle will remain angle only. So remember, when you have 3 angles combined together, will be forming the figure of triangle. जब हम 3 angles को एक साथ combine करते हैं तो you will get the figure of triangle. Now remember, triangle एक ऐसा figure है जिसमें केवल 3 angle ही नहीं होते, बल्कि 3 sides भी होती हैं, 3 sides भी होती हैं, and also 3 vertices. Remember this. It means triangle has 3 angles, triangle has 3 sides, and also triangle has 3 vertices. Now let us understand how a triangle look like. So remember, as I have already told you, when you combine 3 sides or 3 angles together, that polygon will be known as triangle. So this is the figure of triangle. Now let's name this triangle as PQR. So my triangle name is triangle PQR. Now remember बेटा, ट्राइंगल का नाम हम कैसे पढ़ सकते हैं? किसी भी फिगर को बनाने के बाद उसको नाम कैसे पढ़ते हैं ये आपको हमेशा आना चाहिए, चाहे वो एंगल का नाम पढ़ना हो, साइड्स का नाम पढ़ना हो, या वर्टिसेस का नाम पढ़ना हो, या एंगल का नाम पढ़ना हो. यू शुड नो हाउ टू रीड द नेम. नाउ लुक एट हियर. Name of any of the figure can be read clockwise or anti-clockwise, both the sides. Now, अगर आप clockwise पढ़ते हो तो नाम क्या पढ़ोगे आप? PQR. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं तो नाम क्या पढ़ेंगे आप? PRQ. और दोनों के दोनों बिल्कुल सही है. तो इस ट्राइंगल का नाम हुआ ट्राइंगल. ये हो गया ट्राइंगल का छोटा सा सिंबल, एंड द नेम इज PQR. Do not put comma in between. Keep in mind, do not put comma between the name बेटा. ट्राइंगल का नाम हो गया ट्राइंगल PQR. ओके, अब हम बात करते हैं इसकी साइड्स कौन सी होती हैं, इसकी वर्टिसेस कौन सी होती हैं, और इनमें एंगल्स कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल के वर्टिसेस के बारे में. सो आई एम राइटिंग हियर द कॉलम वर्टिसेस. एक तरफ आई एम मेकिंग द कॉलम ऑफ एंगल्स, एंड अनदर साइड आई एम मेकिंग द कॉलम फॉर साइड्स. So let's discuss one by one. सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिसेस की. वर्टिसेस का मतलब होता है बेटा कॉर्नर्स. This triangle has 3 corners. First of the corner is this, second of the corner is this,
एंड थर्ड ऑफ द कॉर्नर इज दिस. कॉर्नर मीन्स पॉइंट. ठीक है, जहां पर दो लाइन सेगमेंट आकर के आपस में मिल रहे होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टिसेस. लुक एट हियर, where two line segments are connecting to each other is known as the point, or you can call it vertices. So it means triangle has three vertices. कौन कौन सी three हैं बेटा? P, Q and R. So the first vertex is P, second vertex is Q and the third vertex is R. So P, Q, R. These are points. हाँ, points की तरह होते हैं बेटा. Vertices मतलब होता है points. You have written P, Q and R. Now let's move on to the second part, that is angles. Triangle में मैंने पहले ही आपको बताया, triangle means three angle. Triangle, three angle. Now let us understand how we have three angles. सबसे पहले see this. One line segment, two line segment joining together, and you can see this is the first angle, which I am making it little shaded. This is the first angle. तो सपोज हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1. को नाम दिया मैंने एंगल 1. आपको पता है हम लोगों ने मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया भी था एंगल का नाम कैसे लिखा जाता है. तो एंगल के नाम को आप नंबर से भी शो कर सकते हो. तो आई हैव टेकन दिस नंबर 1 because this is the first angle. Now look at the second angle. Second angle means, look at here now, this is there, this. Two line segments are coming together and forming the shape of angle. This is second angle beta. Second angle का नाम मैंने दे दिया angle number 2. Okay, now let's see, last but not the least, third angle. Again here two line segments are joining together. So this is the third angle. It means this triangle has three angles. What are the three angles beta? Angle 1, angle 2, angle 3. So we have three angles. और आपको पता है एंगल का नाम कभी भी बिना सिंबल के नहीं लिखा जाता है. So we will have the names like angle 1, angle 2, angle 3. So it means this triangle has three angles. इस एंगल का नाम बेटा हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अलग फॉर्म में कैसे? आपको पता है कि एंगल का नाम हम 4 डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं. तो एक वे तो आपकी ये हो गई 1, 2, 3 वाली. सेकेंड वे आप कैसे कर सकते हो? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ये हो गया आपकी सेकेंड वे ऑफ राइटिंग द names of an angle. So angle A, angle B, angle C. This is the second way. Now let's move on to the sides. Beta remember, sides of any polygon का मतलब होता है you are talking about the line segments. किसी polygon में कितने line segments हैं यही डिसाइड करता है कि उसके अंदर कितनी sides हैं. So now let's see इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट हैं. सबसे पहला लाइन सेगमेंट ये, look at here, I am putting it dark. ये मैंने डार्क कर दिया इसको. सबसे पहला लाइन सेगमेंट, इसका नाम दे दिया मैंने PQ. सॉरी इट्स PR. सॉरी इट्स PR. ओके. सेकंड देखते हैं. सेकंड वाला इज RQ. ये वाला, इसको मैंने डार्क किया. सो दिस इज RQ. Now last but not the least, the third one. This is the third line segment. Again I am putting it dark. This is PQ. तो ये हो गया आपका थर्ड लाइन सेगमेंट. थर्ड लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया दिस इज द थर्ड साइड. एंड यू आर नोइंग दीज आर लाइन सेगमेंट्स बेटा. सो इट मींस आप इसको क्या करोगे, आपने इसके ऊपर बना दिया ये लाइन फॉर मेकिंग इट लाइन सेगमेंट. Now finished. This is all about a triangle. So students, once again I am telling you all the vertices and angles and the sides with the help of another triangle. ठीक है, चलो फोकस करते हैं इसमें. सबसे पहले बात करते हैं हम vertices के बारे में. So when you talk about vertices बेटा,
Vertices means points. Points means the corners of the triangle. So the first corner is X, the second corner is Y, and the third corner is Z. So vertices means points. तो आप इसको कॉमा लगा करके लिख सकते हो बेटा. So we have three vertices X, Y, Z. अब आपने जो भी अल्फाबेट चूज किया हो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. ठीक है. Now move on to the second thing. Vertices के बारे में बाद में हम आते हैं sides में. Sides matlab line segments. Line segments which are present in the triangle. Now look at here beta. The first line segment is XY. So this is XY. Second line segment is beta YZ. So this is YZ. And the third line segment is XZ. So this is XZ. Remember, in triangle, we have three line segments. So here I will mark a line segment sign over here because we are talking about line segments. So there should be a sign over here. Now line segments हो गया, that means sides हो चुका, vertices हो गया, last बचा है बेटा हमारे पास angles. Angles के लिए हम क्या करेंगे? We'll write it down angles like this. सबसे पहले अगर आपको नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो फाइन, और अगर आपको नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिखना है तो इस बार हम एंगल्स को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट एंगल इज दिस. यहाँ पर देखो दो लाइन सेगमेंट. गौरी यू ऑल्सो सी दिस. when you can see when two line segments are joining together and forming a corner like this, it means this is the angle shape. So you have the first angle. What is the vertex? X. So angle X is the first angle. Now move on to the second one. This is Y. You can see this. This is the second one. So this is angle Y. Third, look at here. This is the third shape coming like this. So this is angle Z. It means we have three angles in this triangle. The names are angle X, angle Y, angle Z. अगर आप इनका नाम 3 अल्फाबेट यूज करके लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आपको एक हिंट मिल जाएगी कैसे नाम लिखना है. X, Y, Z, YZX, and another one is YXZ. See, I have written all the three angles. एक बार बीच में आया है Y, एक बार बीच में आया है Z, एक बार बीच में आया है X. जब बीच में आया है X, इसका मतलब you are talking about angle X. जिसमें बीच में आया है Z, it means you are talking about angle Z. जिसमें बीच में आया है angle Y, that means you are talking about angle Y. Remember, vertex हमेशा बीच में होना चाहिए. तो इस बार Y था, इसमें Z था, इसमें X है. It means this is angle Y, this is angle Z, and this is angle X. Okay, so keep in mind आप एंगल का नाम किसी भी फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं. So now students, we are now reaching on exercise 4.4. तो सबसे पहले हम बात करते हैं exercise 4.4 question number 1. Question number 1 says draw a rough sketch of a triangle ABC. तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया एक ट्राइंगल, उसका नाम देना है ABC. पहले से ही बता दिया गया है. So I'll give the name like A, B, C. अब क्या बोल रहा है? मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर. इंटीरियर का मतलब होता है बेटा ये वाला पार्ट. इसने बोला आपको एक पॉइंट P लेना है. तो अब आप पॉइंट P कहीं भी ले सकते हो अंदर. So I am taking here only in between, in just middle, P point. आपको कहीं भी लेना है, अंदर होना चाहिए लेकिन हाँ, it should be inside. It should be inside. Anywhere you want to write it down, you can write it down because it is telling here interior. So मैंने ले लिया interior point P. Sorry. Now it is telling and a point Q in its exterior.
और एक पॉइंट आपको लेना है Q जो कि एक्सटीरियर में होना चाहिए। एक्सटीरियर का मतलब होता है बेटा बाहर। तो मैंने ले लिया यहाँ पर पॉइंट Q विच इज ऑन एक्सटीरियर। देन इट इज टेलिंग इज द पॉइंट A इन इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब आप मुझे बताइए कि पॉइंट नंबर A या पॉइंट नेम A इज ऑन इंटीरियर और एक्सटीरियर। आप बताओ ए कहां पर है, इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है? अगर आपने पुराना वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कहां है, जल्दी से बता दो। वेयर इज पॉइंट ए? इट इज इन इंटीरियर और इट इज इन एक्सटीरियर। वेरी गुड शौर्या गुप्ता, you have seen the video very properly. Yes, absolutely correct beta. It is not on interior, it is not on exterior, it is on the angle region. ठीक है, ना ये अंदर है ना ये बाहर है, ये एग्जैक्टली ट्रायंगल के ऊपर है, एंगल की बाउंड्री पे है। लुक एट हियर, अंदर मतलब ट्रायंगल के अंदर, बाहर मतलब ट्रायंगल के बाहर। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट ए, दिस इज नॉट एक्सटीरियर बेटा। ये वाला पॉइंट मतलब कॉर्नर, मतलब एंगुलर रीजन पे। तो यू विल राइट इट डाउन, ए पॉइंट इज ऑन द ट्रायंगुलर रीजन। वहां पर एंगल था इसलिए हम उसको एंगुलर रीजन बोलते थे, यहाँ ट्रायंगल है इसलिए हम उसको ट्रायंगुलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन का मतलब होता है ना अंदर ना बाहर, एग्जैक्टली ऑन द ट्रायंगल एरिया। ठीक है, ट्रायंगल की बाउंड्री के ऊपर। सो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। Now let's move on question number 2. Question number 2 has a figure which is already given. Figure आपको पहले से दिया हुआ है and figure कुछ दिखता है इस टाइप से, and ये है figure of the question number 2. Question number 2 में आपको नेम दिया हुआ है, this is A, this is B, this is D and this is C. Okay? और आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। अब ट्रायंगल में नाम कैसे लिखा जाता है, ट्रायंगल का वो कैसे निकालना है वो आप बताइए मुझे। हमने अभी अभी पढ़ा है, कैन यू टेल मी हाउ कैन वी सी 3 ट्रायंगल्स हियर? फटाफट से आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं 3 ट्रायंगल जो आपको दिख रहे हैं, जल्दी से बताओ। Which 3 triangles can you see in this one? Which 3 triangles you can see in this figure? I am giving you 1 minute of time. Think and reply. Okay. Now look at here. I am shading it. This is my first triangle. Look at here. This is my first triangle. Let me give the name. First triangle name is ABD. ट्रायंगल का साइन बनाना मत भूलिएगा। ट्रायंगल का साइन ही डिसाइड करता है कि ये एंगल है कि ये ट्रायंगल है। ओके, सो तो फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया। सेकेंड ट्रायंगल इज दिस ऑन द सेकेंड साइड। लुक एट हियर, आई एम पुटिंग इट डॉट डॉट so that you can identify. The name is ADC. तो ये हो गया सेकेंड वन, A D and C. ADC triangle, ADC is the second figure, second triangle. Can you tell me the third triangle name? See this, correct, the larger one, the bigger one. The bigger triangle is also a triangle only. The name is ABC. ABC, या आप उसको ACB भी पढ़ सकते हो, ABC भी पढ़ सकते हो। बेटा प्लीज डू नॉट पुट कॉमा बिटवीन द नेम। कॉमा मत लगाइएगा नाम के साथ प्लीज। हाँ, आपको नाम लिखना है बिना कॉमा लगाए। ABC, ACB, ACD, whatever you are writing, it should not be in the comma in between. So this is my first question completed. Now let's discuss the second question from it. The second question says here is,
राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। अब यहाँ पर 7 एंगल का नाम देना है। अब आपके पास कई मेथड्स है नाम लिखने की, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक करके नाम लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लुक एट हियर द नेम ऑफ दिस एंगल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है, जो मैंने ये किया डार्क, ये वाला खत्म। अब हम बात करते हैं इस वाले एंगल की, ये जो छोटू सा एंगल है ना, छोटा वाला, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल बी ए डी। दिस इज द सेकेंड एंगल। नाउ आई एम गिविंग दिस छोटू एंगल, नाउ दिस वन, नाम हो जाएगा इसका एंगल ए डी बी। ये हो गए हमारे 3 एंगल्स के नाम जो मैंने इस तरफ लिखे हैं। अब हम सेम चीज मैं करूंगी, मैं उस तरफ के नाम लिखूंगी। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट नेम। अब मैं लिख रही हूँ ये वाला एंगल का नाम, ये वाला। सो आई हैव द नेम लाइक CAD, CAD। जहां पर मैंने डार्क किया है, आई एम राइटिंग दैट नेम ओनली। अब आई एम राइटिंग दिस नेम, ये वाला। सो द नेम इज ADC। वर्टेक्स हमेशा मिडिल में आना चाहिए बेटा। सो दिस इज नाउ ADC। आई हैव रिटन ADC नाउ। अब बचा ये वाला, इसका भी नाम लिख दिया जाए। इसका नाम है ACD, ACD। अब नाउ आई हैव रिटन टोटल 6 एंगल्स आई हैव रिटन, बट क्वेश्चन में बोला गया था यू नीड 7 एंगल्स। तो अब हम 7 वाला कहां से लाए? 7th angle is this, the bigger one, correct? Somebody has written, yes, this is the first main angle now। इसका नाम है BAC, तो इसका नाम भी लिख देते हैं हम BAC। This is the last angle। Now total 7 angles we have written। Now move on to the third question, that is write down the names of 6 line segments। लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ बेटा यू आर टॉकिंग अबाउट द साइड। एक एक करके अब हम साइड लिखते हैं। सबसे पहला AB, उसके बाद BD, उसके बाद DC, उसके बाद CA, उसके बाद आपने लिखा यहाँ बीच वाला दैट इज AD, उसके बाद you have the bigger one that is BC। How many line segments we have written? 6। 1 2 3 4 5 6। एंड क्वेश्चन में भी आपको 6 ही चाहिए थे, है ना? क्वेश्चन में भी आपको 6 ही चाहिए था। आई हैव रिटन। नाउ AB को हम DA भी लिख सकते हैं, BD को हम DB भी लिख सकते हैं, CD कैन बी रिटन DC, CA कैन बी रिटन AC, AD कैन बी रिटन DA and BC कैन बी रिटन CB। बोथ आर फाइन। नाउ लास्ट but not the least question is, can you tell me the 2 triangles which have angle B? ऐसा कोई ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसमें एंगल B है? दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B होना चाहिए। कैन यू फाइंड अ ट्राइंगल ऑन विच एंगल B इज विजिबल? ऐसे 2 ट्राइंगल का नाम बताइए जिन दोनों ट्राइंगल में एंगल B होना चाहिए। लेट्स सी कितने लोगों की नजरें बहुत अच्छी हैं और शार्प हैं। Okay, angle B, very good. Some of the students have written, yes, absolutely correct. The first triangle name is ABC। सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल ABC जिसके अंदर एंगल B है। ओके, एंड सेकेंड ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला, इसके अंदर भी एंगल B है। So that is completed